Good evening, everybody. I, Dr. Jyoti Munde, the convener of this webinar, feels extremely privileged to be here as a moderator in this international webinar. Today's esteemed panelist, yoga teacher Sri Vinayak Desai, Dr. Beatrice Deschamps from Paris, PhD students Gayatri and Tanushri from France and Scotland respectively, Kshitij from IIT Bombay, Honorable Chairman of DES Society, Sri Sharadji Kunte, Secretary of Deccan Education Society, Sri Dhananjay Kulkarni, Trustee of the Society, Advocate Neil Helekar, Principal of Kirti College, Dr. D.V. Pawar, our patrons, members of Advisory Committee, life members, principals and vice principals of various colleges under DE Society, coordinators, staff members, loving parents, and my dear students. On behalf of IQAC and Counseling Cell, I greet all of you with open arms. At the outset, let us invoke the spirit, natural force by reciting a prayer. This rendering of the prayer is for peace, harmony, and benevolence of humanity. I request my colleague and friend, Dr. Meenal Mahapuskar, to recite shlokas to invoke natural forces to bless us. Over to Dr. Meenal Mahapuskar. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvina Bhaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. After seeking blessings of higher power in this spiritually charged atmosphere, I request our beloved principal, Dr. D.V. Pawar, to formally welcome this virtual yet august gathering. Over to Dr. Pawar. Namaskar. Good evening to one and all. Respected Chairman of Governing Body of Deccan Education Society, Pune, Dr. Sharadji Kunte sir, Trustee of Deccan Education Society and Chairman of Kirti College CDC and JCC, Advocate Sri Neil Helekar sir, resource person of today's webinar, Dr. Beatrice Madam and Sri Vinayak Desai sir, student speakers, Ms. Gayatri, Tanusri, and Kshitij, teaching and non-teaching staff, and dear participants. I, Dr. D.V. Pawar, Principal of Deccan Education Society's Kirti College, extend a warm welcome to each one of you for this online
international webinar on Corona, Youth and Yoga, organized by IQC and Counseling Cell of our college. Ladies and gentlemen, Kirti College was set up at Dadar, Mumbai in 1954 to impart higher education to the first generation learners of the surrounding areas. Besides imparting conventional undergraduate courses in arts, commerce, and science, under Granting Aid scheme, our college now also offers 6 self-finance courses like IT, computer science, BMM, BAP, BMS, and biotech. Moreover, we offer postgraduate programs like MSc in Computer Science, Information Technology, Chemistry, and Zoology. Our college is also PhD Research Center for the subjects of Chemistry and Zoology. Our college has undergone the process of assessment by NAC and secured A grade in all 3 cycles. Besides, University of Mumbai awarded our college with Best College Award. Deccan Education Society is our parent body situated in Pune, which was established in 1884, is one of the oldest premier higher education society in the country. Ladies and gentlemen, due to COVID-19 pandemic, this year we are celebrating 6th International Day of Yoga on virtual platform. Friends, life in modern times has become highly stressful. The stress level has increased manifold with the current COVID-19 pandemic. However, practicing yoga exercises helps in overcoming stress, social isolation, negativity, and depression, which is commonly experienced during the present pandemic situation. Yoga can be play a significant role in psychosocial care and rehabilitation of corona patients in quarantine and isolation. Friends, millions of people all over the world have embraced yoga in their lifestyle. India's permanent mission to United Nations has developed a special model of yoga exercises, breathing and meditation practices to mark this year's International Yoga Day. In India, Ministry of Ayush has started a campaign called Yoga at Home, Yoga with Family to encourage the practice of yoga to counter the adverse effects of virtual infection as well as to promote healthy lifestyle. By practicing yoga, exercises, meditation, and vipassana techniques, we can slow down the spread of COVID-19 pandemic and boost our immunity. I am sure that at the end of today's webinar on Corona, youth, and yoga, we all will be in a positive frame of mind with enriched experience of yoga exercise and their positive effects on our life. On behalf of Kirti College, I once again welcome you all and wish the organizers all the best for conduct of this webinar. Thank you so much, and over to Jyoti Munde. Thank you, ma'am. Thanks a lot, sir. Honorable Chairman of Deccan Education Society, Dr. Sharadji Kunte, has been a source of inspiration and motivation to all of us. To introduce the theme and set the tone of this webinar, I request respected Dr. Kunte to deliver the keynote address. Over to Kunte, sir. Thank you. Welcome all of you. International Yoga Day is being celebrated all over the world. Yoga is a physical activity and expected to be performed either individually or collectively. This is an exceptional situation that we cannot assemble together and perform yoga
due to pandemic restrictions. But at the same time, we have an opportunity to establish that yoga is probably the only tool which can build the internal resistivity or immunity against coronavirus attack. Neither there is any effective medicine available to cure the viral disease, nor we could have any vaccine to prevent it. So the only alternative available with us is to develop the immunity against it. Coronavirus mainly affects the respiratory system, especially the lungs. So we have to find out an exercise to strengthen the respiratory system, and that can be achieved by yoga practice. One can claim that India may have borrowed different technologies from other countries of the world, but we are proud that our ancestors have given 5 precious gifts to the humanity. Each of one has a potential to bring peace and prosperity to human life. These gifts are yoga, Ayurveda, Sangeet, Adhyatma, and family system. So far, only yoga is introduced by Honorable Narendra Modi to the world community, and that is being performed all over the corners of the globe. Significance of the other gifts will be unfolded progressively. An enthusiastic group of professors from Kirti College is active throughout the year to carry out many such functions for our students, faculty members, and others. Even though the pandemic situation has brought some restrictions on the activities, we could conduct several webinars and involve stalwart personalities to share their wisdom. This is an international webinar organized at the special occasion of Yoga Day. Yoga experts from overseas will share their experience and wisdom in the field of yoga. I welcome all the participants on and off the dais and extend my well wishes for the success of the program. I extend my thanks to the organizers for giving me an opportunity to say a few words in this August gathering. योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. Thank you so much, sir. You have well stated the purpose of this webinar. COVID-19 and resultant lockdown have forced us to stay indoors, depriving us of most of the exercises like jogging, swimming, walking, gym, etc. Alongside, the situation outside is awful and horrible. As a result, people suffer from worry, anxiety, depression, fear. So many that I can't even count. Friends, COVID-19 is such a killer that denies us dignity of life and dignity even in death. A dead body in black plastic bag is not what we deserve. We deserve better treatment. Against this backdrop, the only option is to take few measures to boost our immunity and remain strong mentally. The time-tested remedy is the way of yoga and meditation. The panel discussion, which we are going to start soon, we will see the role of cleansing processes like Jaladhauti, Jalaneti. We will also see Surya Namaskar as an effective agent of all-round exercise, functions of Kapalbhati, pranayama as a panacea to keep COVID-19 at bay, etc. 3 students and 2 experts comprise our panel today. With this, let's proceed to our first student who has joined us
from France. She is Miss Gayatri, who is a PhD student from Marseille, France. Hi everyone. Hi. I want to thank everyone for just joining this webinar today and wish you a very happy International Yoga Day. And Thank I you am so much, so Gayatri. grateful to be a part of this discussion. Thank you for having me. Okay, Gayatri. Nice to see you here. Tell us, which university are you pursuing your doctorate? What is your area of specialization? And where's your institute located? Okay, so to begin with, I am originally a Mumbaikar and I pursued my bachelor's and master's in Pune. And then I have now moved to Marseille and I'm studying at the Institute of Developmental Biology. So I work on embryogenesis in fruit flies, and yes, I'm in Marseille, France right now. And what is the seed of corona pandemic and lockdown in your area? So most of France went into confinement starting in March, and it extended up to May. So that's 2 months of a very stringent lockdown. And right now, the city is slowly and steadily opening up. Okay. Are you staying in hostel or are So yes, go ahead. So yes, I don't live in a hostel. I have an apartment of my own, and I am not blessed as all of you to stay in the warm comfort of your friends and family back home. I am living here alone, and in the past 2 months of confinement, I have not seen a familiar living soul. So well, yes, that's my story. Okay, then how did you manage during lockdown? Because our students are missing college campus, the fun, and they are thoroughly bored within four walls. To begin with, I think having Zoom calls with my friends, my family, and even the members from my lab where I work, it has been a great support and motivation to keep me sane, both mentally as well as motivating me to have more and more physical activity. And on that backdrop, my practices of yoga, which as Jyoti ma'am mentioned, Jala Niti and Jaladhoti, which I have been practicing back home in Mumbai, and I have brought them with me here. So this first came to me when I moved here and it was winter, and I have a problem of having chronic respiratory disorder, and which is why cold and cough is very common. So I think Jalaneti and Jaladhoti and a regular practice of it kept me sane and very confident during this time of Corona. Well, that's nice to know. But how do you perform Jalaneti? Do you perform with a pot or? So classically, when Jalaneti is taught to students, it is taught to start with a pot, and you are supposed to have the pot. But given these unusual circumstances, what I do is generally just use a glass, and you can fill it up with water, add a bit of salt, and with that warm water, you can just place the glass in front of your nose, and you can have the water. You can breathe. You can take in the water through your nostrils and take it out of your mouth, that it will basically cleanse your tract. That is really nice. You are Atmanirbhar in true sense because you don't have any dependence on any equipments or instruments. So, what do you think? How do you perform Jaladhauti? And with this, also tell us what are the various benefits that you have got because of these two cleansing processes. So, along with Neti, Dhauti is another Kriya in yoga, and for Dhauti, you would again need a pot of water
and you are supposed to sit in a Hanuman pose, and in that you are supposed to drink water, and after you're supposed to or vomit it out. So as you can see in the pictures, this is the pose which you sit in, and you can drink the water from your pot. It has to be warm water with salt. And once you have had all of the water, you can start vomiting out, as shown in the next picture. And this entirely cleans your gastrointestinal tract. And having this as a part of starting my day, I do this generally twice a month in consecutive 3 days, and it has really helped me to sort of detox, and it helps my system to stay better and healthier. Well, we have one more picture of you wherein you have performed Sutra Neti with the help of catheter. So it is an advanced way of cleansing your respiratory and nasal tract. But there you said that you have been performing it with glass with both the nostrils. That is so nice of you, Gayatri, for joining us and sharing how you have dealt with corona. And although it was a really very dangerous situation in France those days, so staying away, as you said, staying away from your family, staying alone, cooking for yourself, cleaning, washing, managing everything, and still taking care of yourself with the yoga that you have learnt in Mumbai, that is, and the two kriyas that you have said. I think our students will really take inspiration from you. So thank you very much, and God bless you. Thanks for joining. Thank you so much for having me. Dear friends, we have with us one more student who is very happy-go-lucky, I can say, a very jolly student from IIT Bombay. Right now he is sitting in Bhiwandi, Thane, and he is Master Kshitij. Hello everybody, I'm Kshitij. I study in IIT Bombay right now. So Kshitij, thank you for joining. So how is life? Like life is actually very good. It's worth living, you can say. Okay. You said that you are from IIT Bombay. So please tell us, what do you study? I mean, which stream or what is the course that you are taking? Okay, so I study in chemical engineering. Comes a little bit of mechanical engineering also, but it's still a good thing. Okay. Are you a first year student, or I mean, which year are you studying right now? Okay, so right now I'm not really sure which year I should be in, because the third year was going on and this pandemic happened. I don't have any clue regarding what exams are going on. Though there is a vague grading policy that's going on, I'm not sure which year I am in, rather if I am in third year or I've been promoted to the fourth. But here you can see I have my ID card with me, so I'm still a student. Well, That's so you for are sure. student. You have shown your authenticity, that you are authentic student of IIT Bombay. That's Yes, nice to know. But where are you right now? Are you home or a hostel? So I am at home actually about 15 days Please before. tell us your routine at home. So at home, actually, let me start by telling a bit about myself. As you may have guessed by looking at me, I'm not a very athletic person. I try to laze around, and due to my mom's very good cooking skills, she usually makes a lot of things to for me to eat, and I usually gain weight. I have that kind of metabolism. So uh, so I started to realize that I needed some activity to get down my weight. So I just started swimming, because the first thing I like about swimming was that it didn't involve any sweat, or when you are in the water you don't even feel any fatigue or something like that.
but due to this pandemic condition, I was, of course, we are not allowed to go out. And then my mother and father both being both being here with me and both being instructed in yoga, they told me to perform various types of asanas or also different types of like meditation techniques and all. But I wasn't very keen on doing that because for personally I found it very boring. So one day I saw my mother performing the Surya Namaskar, and it was a really good thing. They told me to try it once, and it was something that I did over and over and didn't have so much fatigue or something. But it uh, really counted as exercise, if you can say. But what it did actually that I was also gaining weight again over here as there was no physical exercise over here, and being at home, you know how mothers do after their after their children come back from the hostels. They go all out and make sweets and everything. So I started gaining weight again, and to suppress that, I started doing Surya Namaskar. So Surya Namaskars, the best thing was that it happened very quickly. I can do about 3 or 4 in a 1 minute, and I started from like around 20 in a day to I went now I do around 60 a day. As for the benefits that I've had from doing Surya Namaskars was that again it was about weight loss. That's the first motivation that I had, and so I lost around 3 to 4 kgs sitting right over here in the pandemic, enjoying myself. Okay, that is so nice to know that even after relishing the delicious food prepared by your mom, you have not gained weight, rather you have lost weight. Because sir. I know that you told me your mom says that जितने लंबे हो उतने चौड़े हो जाओगे, कुछ करो. So Right, that's true. do you know that there are 12 asanas in one Surya Namaskar? Okay. I'm not sure about anything like that. Well, it doesn't matter. There are 10 अंकों वाले और 12 अंकों वाले भी सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो. But there are 12 asanas: ऊर्ध्व नमस्कारासन, जानुशिरासन, एक पाद प्रसरण, द्विपाद प्रसरण, अष्टांग नमस्कार, सर्पासन, भूधरासन, एक पाद आकर्षण, द्विपाद आकर्षण, नमस्कार पूर्व स्थिति. ये सारे आसन उसमें होते हैं. And in one Surya Namaskar, when you perform 10 to 12 asanas, and Kshitij, daily you do 60. So many asanas you are doing. So don't worry, you will definitely have a very good and healthy body and mind. All the best for your future endeavor. Thanks for joining. Thanks, Kshitij. Thank you for having me. Let us move further. To be balanced, happy and peaceful, one turns to meditation. In every quiet moment, one can turn inwards to meditate. What is meditation? Is it something hypnotic, strange, and beyond our capabilities? No. It's simple once you learn the technique. We have with us a student, one more student, who practices meditation. Let us meet Tanushri. Hi Tanushri, how are you? Hello, I'm good. Yeah. Originally from Nagpur, right now she is pursuing PhD in Scotland, UK. Tanushri, please tell our students what exactly are you studying and what is area of your specialization and university that you go to. I am studying in Glasgow, which is in Scotland, and I'm doing my PhD in mathematics in geometry. Okay, thank you. My dear students, I would like to tell something more about Tanushri, which she may not like, but other than arduous task of understanding geometry, she's an artist. I know you must have found it very weird sort of, because geometry and art don't go together, you may feel. But this is a very unique combination that we can find in Tanushri. At the same time, she's involved in integrating art in math and making people applying math
in everyday life. Rather, she has made this, rather making laymen to appreciate math in their everyday life, she has made it her mission, for which I really like you, Tanushree. Coming Thank back you. to our theme, I would like to ask you, what is your routine today during pandemic? I mean, your studies, etc. So I get up around 8 o'clock or 9 o'clock in the morning, and then do some physical exercise, some cardio. Then I'm teaching in Scotland. We're doing it online. So that goes on till evening 5. After that, do something creative for myself. And after that, I have dinner, and then I practice Vipassana for an hour before going off to sleep. Okay, please tell us, because everybody, our students are very much stressed about their studies, their future admissions, careers. How do you handle your stress? Frankly, the whole day, I also have some or the other kind of stress on my head. But before sleeping, when I do this 1 hour of meditation, it clears my mind of everything. Stress levels go down, and I have a very peaceful sleep. And then I get up in the morning with a fresh day. Apart from that 1 hour, Vipassana has a smaller part called Anapan, which I practice throughout the day. It is something that you have to just concentrate on your breath and be conscious about whatever you are doing. Like right now, I'm talking to you, so I'm just talking to you and doing Anapan. I do it when I'm eating, I'm taking bath, I'm studying. I try to do it the whole day. So that keeps the stress level low the whole day. That's nice. How long have you been practicing this technique? It's been 6 years. The first time I did Vipassana course was in my first year of college. And since then, I've been doing this. That's nice. Is there a center in UK, and have you visited it? Yes, Vipassana there is. center. Yes, there are a couple of centers in UK. I have visited the one which is near London. My experience there was very good. The course was similar, but just because it was in the outskirt of London, the scenery was beautiful. It really calms you down as soon as you step in there. And between my PhD, whenever I can get a 10-day break, I prefer to go there and practice Vipassana for 10 days. Fantastic, Tanushree. You are an ideal child because you are interested in art and math, and then you perform yoga, meditation. You have learned to handle your stress. Nice to know this, and thanks for joining us. And Thank God you. bless you, beta. Thanks a lot. Dear students, you have just now come to know about a technique of meditation. To throw more light on Vipassana as a technique of meditation, we have an expert who has been a practitioner of Vipassana for quite some time. Let's welcome Dr. Beatrice Deschamps. She is from Paris. Hello, madam. How are you? Hello. Hello. Good evening to one and all. Thank you so much for having me this evening. Yeah, welcome. Once again, I welcome you in this international webinar on Corona Youth and Yoga. My dear students, I would like to give you brief introduction of Madam Beatrice. She is Masters in Maths, and she has done 5 years course, which is equivalent to PhD in Corporate Finance. With this, she is also BAMS, that is Ayurvedic doctor from Gujarat University. She is yoga instructor from Kaivalyadham, Lonavala. She has completed 13 10 days courses of Vipassana, then 10 days some special courses, 2 courses of Satipathan, and 20 days she has served
full-term courses of Vipassana, wherein she has worked as a, or she has offered her services. And this particular part of her as a practitioner of yoga that impresses me a lot. Although she is a very versatile person with Ayurveda and yoga and Vipassana and finance and so on. So I once again welcome you, Dr. Beatrice over here. And what I have gathered that you have long association with India. Do you like India? I love India. There is no other word actually. India welcomed me almost 10 years back, and I will never forget what I owe to your country. Okay, thank you so much. So, how are the things at your end in France? It's good actually. It's changing a lot. It has been locked down for 2 months since March. So I was strictly in Paris at that time, so it was very strange. Everything was closed and we could hear the birds outside. It was really amazing. And then the life is coming back now since mid-May, something like that. And it's getting a little bit crazy now. So let's see what's going to happen. Well, please tell us what is the technique of Vipassana, how it is done, your experience as well as how our students can go ahead with it. Yeah. So the aim of Vipassana actually is to remove the deep impurity of our own minds. So it works at the very root level of the mind. This is the first thing. And it works with the law of nature, with the karma phal. So the causes and consequences of our actions. So it's a completely universal practice. It's a non-sectarian practice. It just uses very natural tools like the breath, the sensation, the body sensations, mainly. So how to remove the deep-rooted negativities, because it's unconscious, right? We all go through those phases. Sometimes we have jealousy, we have anger. We all come through that, or depression or whatever. So it works with the sensation and the breathing again. So you go through a 10 days course. Usually this is the pattern because this is how it works. And then first you learn the Anapana technique, the breathing technique. Then you learn to observe your sensation. And then after the 10 days, you find out that you came through all these things coming up and you found the solution. And then it goes away and you feel better. You feel peace and harmony. This is how it works. So the 10 days courses are free of cost. It's working on donation basis. So at the end of the course, you are free to give according to your own earnings and your willingness to give. This is how it works. And the technique is the Eightfold Noble Path practiced by Gautam the Buddha. So it's a very old technique, which is divided on Shila, Samadhi, and Panya. So there will be the Panchashila at the beginning, and this is what is required to respect during the whole course. So the 5 Shila are basic things that everyone is trying to respect in everyday life, I would say, especially in India, what I found. So it's not to kill, not to steal, not to lie, not to have sexual misconduct, and not to take intoxicants, mainly. And then you will have another part on Samadhi, which mainly will be the Anapana technique, which is taught by Goenkaji. I think you will find the link on the chat box or somewhere below, if I remember it properly. And then Yes. Link is shared on chat box for students. Yeah. And then you will learn Vipassana, which is mainly observing the body sensation with more awareness, and you will learn to stay balanced. Actually, the mind will learn that way to stay balanced.
And at the end of that work, then you will find more quietness and more calm and more peaceful. So the result actually of that technique is to be in the here and now moment, not to be somewhere else, because we all have that tendency, right, to go here and there. We know how the mind is. It goes, it catches something and it goes. So it just brings us back to the now moment, to the present moment, in a very peaceful way, actually, accepting what is there now. And it has been thought actually by Goenkaji, who transmitted this technique to India. Well, please tell us what is the significance of this technique in face of corona? In face of corona, actually, I found it's very helpful because we all go through a lot of emotion, very, very, very deep-rooted emotions and very deep-rooted things, like very deep fears. So I'll take my own experience. Maybe it's more significant. So I went through the fear of losing my parents, for example, or losing my relatives. And then I assessed also what was my fear of getting that disease and what was my fear of transmitting it, and what was the fear of, losing others. So it was very interesting because through the technique and through the meditation, then I realized that I'm preparing myself to that. And then the fear was just there and then it went away. It was just transitory. So that was very helpful for that. So I'm going out, I'm doing my everyday routine and activity, and I don't have any fear. So that was very interesting for that. For the anger also, whenever anger arises or any form of negativity, actually, I'm able to observe it and to accept it as it is without following the emotion, without giving actually it free license to express. And then I'm doing my activity in a very balanced way. That's how it's very helpful. And it helps also to keep the balance and the quietness of the mind at home, because we went through a very huge phase of lockdown. So we had to stay at home. So the stress level are reduced that way also, because same way you will observe the stress, you will see how it manifests, and that will go, that will change, that will not stay forever. Yeah, that proves the law of impermanence. Yeah, everything changes. Everything changes all the time, especially emotions. So there is no way to follow them and to hold them back or to push them away, because they will go. That is the nature's law. Yeah, definitely it is. It's nature's law. And so one must understand it. So how a common man can, perform it? So the technique is still taught by Goenkaji. So the way actually to learn the technique is to go through a 10 days course. That is mandatory to really learn the full technique in its pure form, actually. So one can start with the mini Anapana, and the mini Anapana, even with 10 minutes of focusing on the breathing, it helps actually. I could see it even in my own surrounding. So it's really quietening the mind. There is a very deep link between our breathing, actually, our natural breathing, and our mind, our emotions. So this can be done everywhere. It can even be done open eyes, in the subway or walking. It can be done anywhere, really, but it takes time. It takes time and patience, because at the beginning, the mind is very wild. So True, and it is again a question of habit. You will have to train your mind and body. yeah.
that is mandatory. If you don't have like the willingness to come and sit even for 5 minutes, of course that's going to be a little bit more difficult. But 5 minutes, it's not that much. So even 5 minutes, it can work. Yeah, and the students can try that on the link which is given, which is a video of mini Anapana guided by Goenka Guruji. So children can definitely try, and then as said by Dr. Beatrice, they can, once the pandemic is over and lockdown is open, then they can definitely go for 10 days course, which is free of cost lodging and boarding. So students can definitely make use of it. That is so well said by Dr. Beatrice. And Dr. Beatrice, I'm really very grateful to you for joining with us, because you are a very busy person. Yesterday you had a conference on alternative medicines. You are running your yoga classes on the beach there. Yeah. So in spite of your busy schedule, you have taken time for us. So thank you so much. Thanks for joining. Thank you so much for having me. Dear students, now we will proceed to a very important session of this webinar. And the panelist is yoga teacher Shri Vinayak Ji Desai from Ambika Yogashram, Thane. नमस्कार विनायक जी, विश्व योग दिवस की आपको बड़ी आरोग्यमयी शुभकामनाएं। और इस वेबिनार में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर मुझे आपका परिचय संक्षिप्त में देना है, क्योंकि मैं अगर आपके बारे में ज़्यादा कहूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कहूँगी कि सन 1981 1981 से आपके उम्र के 14 साल से आप योग के क्षेत्र में हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वर्गीय हठयोगी निकम गुरु जी से आप जुड़े हुए थे। 19 साल उनके साथ उनसे सीखने के बाद और उनके साथ काम करने के बाद 1919 में आपने श्री अंबिका योगाश्रम थाने इस नाम की नई संस्था का स्वतंत्रता के रूप से संस्थापन एस्टेब्लिश किया। और मैं कह सकती हूँ कि लास्ट 38 इयर्स से आप इस योग क्षेत्र में कार्यरत है। और व्याधि निवारण के हेतु हर मंगलवार और गुरुवार श्रीरंग सोसाइटी थाने में, जहाँ पे अंबिका योगाश्रम है, आप शाम को मार्गदर्शन करते हैं। अंबिका योगाश्रम की 48 यानी 48 ब्रांचेस है, जो मुंबई, भिवंडी, पालघर में है। और जहाँ पर मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे योग जो है वो बिना मूल्य, बिना किसी पैसा लिए सिखाया जाता है। और ये सबसे इतने साल का 38 साल का ये बिना किसी पैसा लिए हुए किया हुआ डेडिकेशन है और कार्य है। और मैं इसी कार्य से मैं आपके सामने बहुत ही नतमस्तक हूँ। और आपकी पहचान जो है, आपका परिचय है, मैं खुद को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आपकी शिष्या हूँ। हम दोनों मिलके परम पूज्य हठयोगी निकम गुरु जी के शिष्य हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ और हम दोनों मिलके योगा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देते हुए आज हम जो योग का विचार करने वाले हैं वो मुख्यत्वे कोरोना के संदर्भ में कर रहे हैं। तो मैं मेरा आपको पहला प्रश्न पूछूंगी कि गायत्री ने जो जलनेति और जलधौती दिखाई है और जिसके बारे में उसने बात की है, तो उसकी और क्या विशेषताएं है? वो ये दोनों क्रियाएं करते वक्त हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? और जलनेति का और जलधौती का भी कोरोना को दूर रखने में क्या महत्व है? नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ कि यहाँ पर मुझे आपने बुलाया है। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म रहते हैं, शरीर शुद्धि के लिए आयुर्वेद में कुछ बातें बताई है, वैसे योग में 6 कर्म बताए हैं। 6 कुछ ऐसे कर्म बताए हैं: धौती, जलधौती, नेति, बस्ती, त्राटक, नवली और कपालभाति। इसमें से ये 2 षटकर्म है, जलधौती और जलनेति। ये दोनों क्रियाएं जो है ये शरीर शुद्धिकरण के लिए बताई गई है। योग की आगे वाली बातें जो है
श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हैं या प्राणायाम जिसे कहते हैं, आसन कहते हैं, ये करने से पहले शरीर शुद्धिकरण होना ज़रूरी होता है। उसके बगैर अगर हम लोग आगे की क्रियाएं करेंगे तो उससे योग हम लोग अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे या उसमें कठिनाइयाँ होगी, हो सकता है कुछ हम लोगों को तकलीफें भी हो सकती है। तो ये बेसिक क्रियाएं हैं योग में से। ये जलधौती जो है, ये जैसा शरीर, हमारे शरीर में जो त्रिदोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ, इनका संतुलन करने के लिए ये जलधौती की क्रिया की जाती है। बहुत सारी व्याधियां जो है, ये व्याधियां ये त्रिदोषों की वजह से ही होती रहती है। हमारा खान पान, आहार विहार, आचार विचार, इसकी वजह से हमारे ये त्रिदोषों में बिगाड़ हो जाता है, उनका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। ये संतुलन को कायम करने के लिए जलधौती की क्रिया को किया जाता है। हम लोग जो जलधौती की क्रिया को सिखाते हैं वो शुरू में 21 दिन लगातार उसे करने के लिए कहते हैं। उसके बाद महीने में लगातार 3 दिन ऐसे हम लोग इसे करते रहे। अभी ये क्रिया फ़ायदा देती है, वैसे उसका कुछ थोड़ी बातें हम लोगों को उसके बारे में ध्यान में भी रखनी चाहिए कि जिन लोगों को अल्सर के जैसी बीमारी है या महिलाओं में कुछ गर्भाशय से संबंधित व्याधियां हैं या क्षय के जैसी बीमारी, टीबी के जैसी बीमारियां हैं, बहुत अशक्तता है, वैसे लोग जो है ये जलधौती को ना करें। इसके फायदे भी है, लेकिन अगर ऐसे लोग करते जाएंगे तो उनको शायद उससे कुछ तकलीफें भी हो सकती है। जैसे जलधौती की बात है वैसी ही जलनीति की भी बात है। जलनीति की क्रिया जो है ये भी किसने नहीं करनी चाहिए, ये पहले हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोगों को कान की किसी भी प्रकार की तकलीफ है या हम लोगों को अगर आंखों का ऑपरेशन हो गया है, मोतीबिंद के जैसा ऑपरेशन हो गया है, तो 6 महीने तक ये जलनीति की क्रिया हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। जैसे जलनीति की क्रिया वो ये कोरोना में कैसा फायदा देती है, हमारी श्वास मार्ग जो है, श्वसन मार्ग जो है, कि अगर पानी से हम लोग उसे रोज अगर हम लोग साफ करते जाएंगे तो ये विषाणु जो है वो अगर वहाँ पर जाके आगे कहीं रुक गया है, श्वसन मार्ग में आ गया है, विषाणु अगर वहाँ पर है, तो ये जलनीति की क्रिया से हम लोग उसे वहाँ से हटा सकते हैं। नाक से अगर हम लोग पानी मुंह में लेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे तो ये श्वसन मार्ग की शुद्धि हो जाएगी। और अगर श्वसन मार्ग के हमारे ये कुछ विषाणु वगैरह गए हैं तो उससे निकल सकते हैं। लेकिन इसकी एक और बात भी है कि ये कितनी बार करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी भी है योग में कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। एक बहुत मुंबई के नामचीन एक ये थे, उन्होंने दिन में 5-7 बार जलनीति करना शुरू कर दिया और उससे उनको आगे चल के तकलीफें भी हो गई। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दिन में 2 बार कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग कहीं बाहर से घूम कर आए, उसके बाद हम लोगों ने जलनीति की, तो ये ठीक है, क्योंकि बाहर के वातावरण में ये अगर कुछ ऐसे विषाणु है, हम लोग घर पे आने के बाद उसे, जैसे हम लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, वैसे हम लोग दिन में 1 आध बार ये नाक को भी हम लोग इस तरह से धो दें। जलधौती की क्रिया जो है ये दिन में 1 ही बार करनी चाहिए और ये जलधौती करने के लिए हमारा 4 घंटे का पेट खाली होना भी ज़रूरी होता है। तो हो सकता है ये सुबह के समय पर हम लोग ये जलधौती की क्रिया करें, जब हमारा पेट खाली है उस वक्त ये जलधौती की क्रिया करें। धन्यवाद। अभी आपने षटकर्म का जो जिक्र किया जिसमें कपालभाति का भी जिक्र हुआ, तो कोरोना का हमला और श्वसन मार्ग इसका बड़ा नजदीकी संबंध है, तो इसमें कपालभाति का क्या महत्व है? कपालभाति ये श्वसन मार्गों को साफ करने की और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए ही क्रिया की जाती है। बहुत से बार हम लोग टीवी पर जो कपालभाति देखते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में भी रखनी चाहिए। बहुत सी बार उसमें जो है ये कपालभाति की क्रिया में पेट को जोरदार धक्के देने के लिए कहा जाता है। वास्तविक ये पेट की क्रिया नहीं है, ये फेफड़ों की क्रिया है। अगर हम लोग श्वासों के साथ पेट की अगर हम लोग हलचल करेंगे, जरा थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जोरदार अगर हम लोग कपालभाति करेंगे पेट को धक्के लगाते हुए, जैसे आमतौर पर हम लोग टीवी पर देखते हैं, जैसे पेट यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा है, नहीं मुझे पता नहीं है, देख सकते हैं। अगर हम लोग जोरदार पेट को धक्के लगाकर क्रिया करेंगे तो इसमें हवा को बाहर निकालने के लिए पेट के अवयवों के ऊपर भी कुछ प्रेशर आएगा। पेट की क्रियाएं जो की जाती है, योग में पेट की क्रियाएं की जाती है, वो बिना श्वास की जाती है। अगर हम लोग हवा को धक्के देकर शरीर से बाहर निकाल रहे हैं
तो पेट के अवयवों के ऊपर भी उसका कुछ उल्टा असर हो जाएगा और हो सकता है उसकी वजह से हम लोगों को कुछ तकलीफें भी हो जाए। अगर ये श्वास की क्रिया है तो सिर्फ हम लोगों को फेफड़ों से ये क्रिया करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख ले आप, रेट भर लीजिए, श्वास शुरू कीजिए, जिसमें शरीर की कम से कम हलचल हो। क्रिया वही हो रही है, फेफड़ों की क्रिया हो रही है, श्वास की क्रिया हो रही है, लेकिन जानबूझकर हम लोग इसमें शरीर को धक्के नहीं लगा रहे हैं। योग का एक बहुत ये रहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात एक योग में है कि कम से कम शक्ति का व्यय हो और ज़्यादा से ज़्यादा उससे फायदा उठाया जाए। अगर जोरदार धक्के लगाते हुए हम लोग ये क्रिया करेंगे तो उससे पेट के अवयवों को कुछ आगे चल के तकलीफ भी हो सकती है। दूसरी एक बात इसके बारे में ये भी है कि ये कितना करना चाहिए। कहीं बताया जाता है 500 बार कर लीजिए, 1000 बार कर लीजिए, तो ये भी थोड़ा सा बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग श्वास की आवाज़ कर रहे हैं। आपके ध्यान में आया होगा जब हम लोग कपालभाति करते हैं तो ये श्वसन मार्ग में श्वास की आवाज़ होती है। श्वास की आवाज़ अगर इसमें होती है तो नेचुरली वहाँ पर कुछ फ्रिक्शन भी होता होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर फ्रिक्शन हो गया, नासिका में ज़्यादा मात्रा में फ्रिक्शन हो गया, तो वहाँ का मार्ग जो है वो शुष्क हो जाएगा, वहाँ पर ऑयलीनेस रहता है। बाहर की हवा में से जो दूषित पदार्थ रहते हैं, मिट्टी के जर्रे रहते हैं या कोई भी हवा में उड़ती हुई छोटी छोटी चीज़ें रहती है, वो शरीर में ना जाए इसके लिए वहाँ पर कुछ चिकना द्रव पदार्थ रहता है, वहाँ पर बाल रहते हैं छोटे छोटे, उसमें से फिल्टर करके हवा को फेफड़ों में लिया जाता है। अगर हम लोग 1000 बार ये वहाँ पर श्वसन मार्ग को इस तरह से फ्रिक्शन करके करते जाएंगे तो वो मार्ग जो है वो हमारा वो धीरे धीरे शुष्क होता जाएगा। तो ये कितना करना चाहिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में ये सारे षटकर्म जो है ये जितना फायदा दे सकते हैं उतना ही नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये कितने करने हैं इसके लिए भी योग में कुछ बातें बताई है कि बाद में जब इनकी आवश्यकता जो है धीरे धीरे हम लोगों को उसको थोड़ा कम भी करना चाहिए। शुरू में ये कपालभाति जो है ये हम लोग बढ़ाते बढ़ाते एक बार 108 तक हम लोग कर लें। 108, 108, 108 ऐसे 3 बार अगर हम लोग इसे करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम लोग 500 बार, 1000 बार दिन में 3-4 बार उसे करते जाएंगे तो निश्चित उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ आगे चल के तकलीफें हो सकती है। तो जैसा मैंने बता दिया कि ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने वाली क्रिया है। हम लोग जब कपालभाति करते हैं, ये श्वास प्रश्वास को अंदर बाहर करते हैं, तो ये हवा हमारे फेफड़ों तक नहीं जाती है, ये सिर्फ श्वसन मार्ग में ही हवा को अंदर बाहर किया जाता है। और इसमें आखिरी का श्वास छोड़कर रुकने के लिए हम लोग कहते हैं, ये दोनों नासिकाओं की श्वास कपालभाति करते हैं, दोनों की आवाज़ कर रहे हैं हम लोग, लेना छोड़ना, आखिरी का श्वास छोड़ के हम लोगों को उसमें रुकना होता है। जितनी देर तक हम लोग ज़्यादा रुक जाएंगे उतनी देर तक हमारे अंदर के जो फेफड़ों के अंदर जो वायु कोश है उनको खुलने का मौका मिलता है। धीरे धीरे जब हम लोग ये कपालभाति करते जाते हैं तो ये हमारे फेफड़े जो है उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे कहा जाता है कि हमारे फेफड़े जो है अगर दोनों फेफड़े हम लोग खोल देंगे तो आधा टेनिस कोर्ट कवर हो सकता है, इतने बड़े फेफड़े हैं। और ये हमारे दोनों छोटे छाती के पिंजरे में उसको सिकुड़ कर रखा हुआ है। बहुत सारा फेफड़ों का हिस्सा जो है ये आमतौर पर हमारे काम में ही नहीं आता है। हमारी बैठने की आदत रहती है, हम लोग जरा सा झुक कर बैठ जाए तो नीचे वाले फेफड़ों में जो है वो हवा जाती ही नहीं है। तो हमारे खड़े रहने की आदत है, बैठने की आदत है, उसकी वजह से सारे फेफड़ों के सारे भाग जो है उसमें हवा कभी जाती नहीं है और वो काम भी नहीं करते हैं बाकी के हिस्से जो है वो। कपालभाति की क्रिया हम लोग करते जाएंगे तो ये हमारे सारे फेफड़ों के हिस्सों में हवा जाती रहती है और उनका कार्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो फेफड़ों की क्षमता ये कपालभाति से बढ़ जाती है। अगर फेफड़ों की क्षमता बढ़ गई, इसका असर कैसे होता है वो भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में लेते हैं। फेफड़ों में काम चलता है, हम जब हवा अंदर लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जो है, वायु कोश जो है वो ऑक्सीजन बाहर की हवा में से अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये उनका काम अंदर चालू रहता है। अगर उनकी शुद्धि हो गई, वायु कोश जो है वो ज़्यादा मात्रा में काम करना अगर चालू हो गए, तो अगर 1 मिनट में हमारा अगर आधा लीटर खून शुद्ध हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है, 1.25 लीटर जा रहा है, धीरे धीरे अगर हम लोग कपालभाति करते जाएंगे तो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो खून में मिलना चालू हो जाएगा। 1 ही मिनट में 1 लीटर खून शुद्ध होना चालू हो जाएगा। खून का शुद्धिकरण अगर बढ़ गया
अच्छे खून का अगर सप्लाई हमारे सारे अवयवों को, इंद्रियों को मिलना चालू हो गया, तो उनकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने के लिए शुरुआत हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल जो है वो शरीर में बढ़ जाएगी। अच्छे ऑक्सीजन का पुरवठा अगर सारे अवयवों को, इंद्रियों को होता गया, तो दिन ब दिन जो उनकी ये घटती जा रही है, उनकी क्षमता जो घटती जा रही है, वो वापस कुछ मात्रा में बढ़ने के लिए शुरुआत हो जाएगी। एक कपालभाति की क्रिया ऐसी है कि जो संजीवनी के जैसा काम कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बताया गया होगा कि ये 2 घंटे में मरने वाला है, वो भी आदमी अगर कपालभाति करेगा तो और 2 घंटे ज़्यादा जी सकता है। इतनी ताकत ये कपालभाति की क्रिया में है। हम लोग ये भी देखते हैं कि इमरजेंसी में कभी हम लोगों ने किसी पेशेंट को अस्पताल में भर्ती किया, तो डॉक्टर पहले क्या करते हैं, उसे ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन कंटेंट हमारे शरीर में बढ़ना चालू हो जाता है, हमारे सारी सिस्टम जो है, अवयव, इंद्रिय जो है, वो धीरे धीरे अच्छा काम करना चालू कर देते हैं। हम लोग अगर रोज कपालभाति करते जाएंगे, लेकिन जितनी मात्रा में बताया गया है उतनी अगर करते जाएंगे, रोज अगर हम लोग हमारी बैटरी चार्ज करते जाएंगे, फेफड़ों को अगर चार्ज करते जाएंगे, तो खून की मात्रा, हमारे ऑक्सीजनेटेड खून की मात्रा जो है वो हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी। और शरीर की इम्यून सिस्टम हम लोग जिसे कह रहे हैं अभी, जिसकी ज़्यादा मात्रा में चर्चा चल रही है, तो वो इम्यून सिस्टम भी हमारी अच्छी तरह से काम करेगी। तो ये कपालभाति का फायदा है। आपने बताया है कि इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए, जैसे आपने बोला, इसकी काफ़ी मात्रा में चर्चा हो रही है, तो हमारे दर्शक इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए कपालभाति का उपयोग कर सकते हैं। विनायक जी, मैं आपको अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारा स्टूडेंट इधर आया था IIT बॉम्बे से, क्षितिज, जो सूर्य नमस्कार कर रहा था, और वो बोल रहा है कि उसका वेट लॉस भी हो रहा है आजकल, क्योंकि जिम बंद है, जॉगिंग बंद है, घर में बैठे बैठे वेट लॉस कैसा करे। वेट गेन ये बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत सारी समस्याएं कम होगी, लेकिन वेट गेन ये हर एक मुंह से मैं सुनती हूँ। तो आप सूर्य नमस्कार को सर्वांग सुंदर व्यायाम भी कहा गया है, तो सूर्य नमस्कार का क्या महत्व है और ये कैसे काम, जैसे आपने अभी एक आरण मीमांसा दी है इस कपालभाति की, तो सूर्य नमस्कार के बारे में क्या कहेंगे? सूर्य नमस्कार ये एक आसनों की मालिका है। जैसा आपने बता दिया कि इसमें 10, 12, कभी कभार 14 आसनों अंकों का भी सूर्य नमस्कार रहता है। तो ये एक आसनों की मालिका है जो थोड़ी जल्द की जाती है। वास्तव में बाकी के आसन जो है ये धीरे धीरे किए जाते हैं, और आसन की पूर्ण स्थिति में कुछ देर तक रुकेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ये आसनों की मालिका है, अगर ये मालिका में अगर हम लोग आसन करते जाएंगे तो क्षितिज को जैसे फायदा मिला है वैसे फायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन वेट लॉस करने की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए बाकी की बातों का भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे वजन बढ़ रहा है और हम लोग उसे कम कर रहे हैं, ये एक बात हो गई, लेकिन न बढ़ने के लिए भी तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अभी इसके लिए एक 2-3 बातें थोड़ी सी हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। वजन अगर हम लोगों को कम करना है तो 3 बातों का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि पानी जो हम लोग पी रहे हैं वो कितना पीते हैं, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग पानी पीते जाएंगे तो हमारा वजन कम नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसकी एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी बहुत से टीवी शोज़ में या पेपर्स में या कहीं भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे बताया जा रहा है कि रोज़ 4 लीटर पानी पियो, 6 लीटर पानी पियो, 7 लीटर पानी पियो। वास्तव में ऐसे कुछ भी आयुर्वेद में या योग में भी बताया नहीं है। किसने पानी कितना पीना चाहिए इसका कोई नियम नहीं है। हम लोग रास्ते पे कुत्ते बिल्लियाँ देखते हैं, क्या वो नाप के पानी पीते हैं? अगर वो नाप के पानी नहीं पीते हैं तो हम लोगों को भी उस तरह से पानी नहीं पीना चाहिए। हम लोग अगर एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, 7-7, 8-8 घंटा अगर हम लोग एसी रूम में बैठते हैं तो हम लोगों को कम पानी की ज़रूरत होगी। अगर हम लोग धूप में 8-10 घंटा काम करते हैं तो हम लोगों को 6 लीटर पानी भी कम हो जाएगा। एसी रूम में है तो 2 लीटर पानी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो किसने कितना पानी पीना चाहिए इसके ऊपर कोई नियम योग में या आयुर्वेद में भी नहीं है। आयुर्वेद जो है ये अपने पशु पक्षी जो है उनको ही ऑब्जर्व करके ये आयुर्वेद की बातें बनाई थी। ज़्यादा पानी पिएंगे हम लोग तो हमारा वजन कम नहीं होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात है, ज़्यादा मीठी चीज़ें अगर हम लोग खाते रहेंगे तो भी वजन कम नहीं होगा। शक्कर है, ये ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग खाते जाएंगे, मीठे चीज़ें जो है वो मिठाई जो है वो ज़्यादा मात्रा में खाते रहेंगे तो भी वज़न कम नहीं होगा।
और तीसरी बात है एक्सरसाइज की। कुछ तो व्यायाम हम लोगों ने करना चाहिए। तीनों बातें जो है वो अगर साथ में चलेगी तो हमारा वजन कम होगा और वो शाश्वत वजन कम होगा। ऐसे नहीं होगा कि सूर्य नमस्कार हम लोग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार छोड़ देने के बाद में वापस हमारा वजन बढ़ गया। ये नहीं होना चाहिए। तो ये तीन बातें जो है ये अगर साइमल्टेनियसली चलेगी तो हमारा वजन कम होता है। आप बहुत सूर्य नमस्कार करते जाइए लेकिन बहुत पानी भी पीते जाइए, मीठा खाना बंद कर दीजिए, वजन कम नहीं होगा। होगा भी तो वापस बढ़ जाएगा। या आप पानी पीना कम कर दीजिए, सूर्य नमस्कार करते जाइए लेकिन मीठी चीज़ें खाते रहेंगे, वजन कम नहीं होगा। ये तीन चीज़ें जब हमारी एकत्रित चलेगी तो ही हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा। अभी वजन कम करने के लिए भी बहुत सारी बातें बताई जाती है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति को जो है वो बताया जाता है कि आप मॉर्निंग वॉक करना चालू करो या ज़्यादा चलना चालू करो। शरीर में वजन बढ़ गया है, शरीर का बोझ लेकर के अगर हम लोग रोज़ 5-5, 10-10 किलोमीटर अगर चलना चालू करेंगे वजन कम करने के लिए, वजन कम होगा या नहीं होगा ये तो हर एक के इसके ऊपर है, लेकिन घुटने जो है उसके वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो घर में बैठे बैठे ही हम लोग योग की कुछ क्रिया करके, कुछ रोलिंग के जैसे आसनों के प्रकार है, पवन मुक्तासन में रोलिंग किया जाता है, रोडासन के जैसा आसन है, ऐसे कुछ आसन जो है वो आसन करके और साथ में ये तीन चीज़ें जो है, दो चीज़ें जो है पानी और मीठी चीज़ें कम खाना, ये अगर हम लोग फॉलो करते जाएंगे तो हमारा वजन जो है वो धीरे धीरे कम होगा। तो कोई भी ये ध्यान में रखे कि टीवी पर एडवर्टाइज में ऐसे कुछ बातें रहती है कि 1 महीने में 8 किलो वजन कम हो गया या 6 महीने में हमारा 2 महीने में हमारा 4 किलो वजन कम हो गया। तो ऐसी बातें जो है ये बातें जो है ये थोड़ी सी इससे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ी बात ये मतलब अगर इस तरह से वजन हमारा कम हो रहा है तो हम लोगों को आगे चल के कुछ तकलीफें हो सकती है। जैसे वजन धीरे धीरे हमारा बढ़ते गया है वैसे धीरे धीरे ही वजन हमारा कम होना चाहिए। अचानक से वजन कम हो रहा है तो या तो आप बीमार है या आपको आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। तो एकदम वजन कम करने के पीछे कोई ना जाए। धन्यवाद। जैसे इम्यूनिटी बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, वैसे ही प्राणायाम के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बारे में काफ़ी गलतफहमियां भी है। आमतौर पे कुछ 4-2 श्वास ले लिए तो लोगों को लगता है कि हम वो प्राणायाम कर रहे हैं। तो आप प्राणायाम पर कुछ प्रकाश डालेंगे? थोड़ा ये विषय जो है ये थोड़ी आगे का विषय है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को कुछ पता करना है इसके बारे में तो मैं बता देता हूँ। वास्तव में एक बात ऐसी है कि पतंजलि योग सूत्र में वगैरह जो प्राणायामों के बारे में बताया गया है उसे ऐसे कहा गया है कि आमतौर पर जो हमारे श्वास प्रश्वास चलते हैं उसको छोड़कर की हुई कोई भी लयबद्ध श्वास प्रश्वास की कृति जो है वो प्राणायाम कहलाती है। फिर आप कपालभाति करोगे तो भी उसे प्राणायाम कह सकते हैं हम लोग। अगर आप मान लीजिए किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, आपके श्वास प्रश्वास अगर लयबद्ध हो रहे हैं, पर्टिकुलर समय पे श्वास ले रहे हैं, पर्टिकुलर समय में वो छूट रहा है, तो वो भी एक प्रकार का प्राणायाम ही होता है। ओमकार का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, श्वास भर के अगर हम लोग ओम की ध्वनि कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का प्राणायाम ही होता है। लेकिन हठयोग प्रदीपिका में या गोरक्ष संहिता में जो प्राणायाम बताए हैं, जिनको कुंभकों के प्राणायाम बताया गया है, वो प्राणायाम जो है ये थोड़ी सी कठिन भी बातें हैं और उसके लिए हमारे शरीर की कुछ पात्रता होना भी जरूरी होता है। अष्टांग योग जिसे कहा जाता है, यम, नियम, आसन और उसके बाद प्राणायाम बताए हैं। तो ये यम नियम जो है इसमें ये कपालभाति, जलधौति, इस प्रकार की षटकर्म बताए जाते हैं, शरीर के शुद्धिकरण की क्रियाएं बताई जाती है। अहिंसा, सत्य, ऐसे जो तात्विक विषय जो है उसके पालन करने के बारे में कुछ हम लोगों को हमारे ऊपर भी कुछ नियम डालना जरूरी होता है। ऐसा सब करके फिर आसनों का अभ्यास हम लोग आगे शुरू कर सकते हैं। आसन करके थोड़ी सी शरीर की पात्रता हो जाए फिर हम लोग प्राणायामों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये जो कुंभकों के प्राणायाम है उसमें श्वास भरा हुआ श्वास रोक कर रखना और उसे छोड़ना, उसका एक रेशो बताया है 1:4:2। मान लीजिए आपने 4 सेकंड तक श्वास भर लिया तो उसे 16 सेकंड तक आप उसे रोक कर रखें।
और 8 सेकंड तक उसे छोड़ दें। ये हो गया रेशो। ये रेशो के साथ हम लोगों को शरीर के कुछ दरवाजे भी बंद करने पड़ते हैं, उन्हें कहा गया है बंध। वास्तव में हमारे शरीर को 9 दरवाजे हैं। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हमारे शरीर के दरवाजे कौन से हैं। ऊपर वाले 7 दरवाजे, 2 आंखें, 2 हमारी नासिकाएं, 1 मुंह और 2 कान, ये ऊपर वाले 7 दरवाजे, और नीचे वाले 2 दरवाजे गुदा द्वार और मूत्र द्वार। ये दरवाजों को बंद करके उसके लिए बंद बताए जाते हैं। जालंधर बंद यानी ठोड़ी जो है ये यहाँ पर लगाई जाती है सीने को, इसे कहते हैं जालंधर बंद, जिससे ऊपर वाले 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। और एक बंद है मूल बंद, जिसमें गुदा का हिस्सा जो है उसे ऊपर खींचकर बंद किया जाता है, जिससे नीचे वाले 2 दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये बंद लगाकर ये श्वासों का रेशो जो मैंने बताया 1:4:2, इस प्रकार के श्वास प्रश्वास करना, ये प्राणायाम कहलाते हैं। अभी ये बात मैं जितनी आसानी से बता रहा हूँ उतनी आसानी से करने की बात तो है नहीं। इसके लिए पहले हम लोगों को ये श्वास प्रश्वास की कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, आसन करने पड़ेंगे, षटकर्म करने पड़ेंगे, धौती नेति ये सब करना पड़ेगा। फिर हमारे शरीर की पात्रता हो जाएगी तो हम लोग आगे प्राणायाम की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बगैर हम लोग प्राणायाम करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको नुकसान ये होगा, लेकिन उसके बगैर हम लोग प्राणायाम करेंगे तो उसका जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा तो नहीं होगा। हो सकता है हम लोगों को कुछ तकलीफें भी हो सकती है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि पहले हम लोग ये बेसिक क्रियाएं जो है वो करते जाए और फिर हम लोग ये आगे की बातें जो है प्राणायाम वगैरह जो है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद विनायक जी। हम सब लोग सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम उधर पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसका पालन भी करते हैं। तो योग एक विद्या है, तो उस यूनिवर्सिटी से सीख के, वीडियो देखकर या तो मैसेज पढ़कर सीखना और करना, उसमें कौन सी रिस्क है? तो अभी फिलहाल ये सिचुएशन है, इसके लिए हम लोगों को इसका ये चीज़ें जो है मीडिया जो है इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी चीज़ें जो है ये आमने सामने बैठकर करने की ही बातें हैं। बहुत सारी बातें इसमें रहती है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं तो आपके ऊपर उसका एक अलग प्रभाव रहता है। एक वस्तु और एक व्यक्ति, इसमें बहुत अंतर है। अगर एक व्यक्ति के साथ में अगर आप बैठ रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके उसका एक ऑरा भी रहता है, एक उसका अस्तित्व जो रहता है वो हमारे बहुत सारे विचारों को कम कर सकता है। अभी जैसे मैं कंप्यूटर को देखकर कुछ बात कर रहा हूँ तो नेचुरली मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि मुझे है भी, आप मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मेरे लिए चीज़ें हैं, वहाँ पर कोई किसी का अस्तित्व नहीं है। अगर सामने किसी का अस्तित्व है तो मेरे विचारों के ऊपर उसका ज़रूर असर होता है। इसका हम लोग एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप अकेले में होते हैं तो आपके मन में कैसे विचार रहते हैं, और अगर आप किसी के साथ में है तो आपके मन में कैसे विचार होते हैं, उसका एक अलग असर रहता ही है। आमने सामने बैठकर जब हम लोग ये बातें सीखते हैं तो ज़रूर उसका एक असर, ज़्यादा मात्रा में उसका असर होता है। एक पॉजिटिवनेस जो है वो आपके अंदर आने के लिए शुरुआत हो जाती है। दूसरी एक बात ऐसी रहती है कि मान लीजिए मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, आसन सिखा रहा हूँ, सर्वांगासन सिखा रहा हूँ, और आप कुछ इधर उधर हो गए, तो यहाँ पर बैठ के मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आपके साथ में हूँ तो मैं आपको पकड़ सकता हूँ, आप गिर रहे तो आपको कुछ सहारा दे सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। ये एक बातें है। तो अभी ये सिचुएशन है इसके लिए, और इसका सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है, जो हम लोग ऐसे बैठकर आमने सामने बात करके थोड़ा थोड़ा जो सीख सकते हैं वो हम लोग उसमें सीखने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको ये सब सीखना है तो किसी व्यक्ति के साथ बैठकर ही ये सब बातें आप लोग सीखें, उससे ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद विनायक जी। व्याधियाँ जो होती है वो कहा गया है कि वो मनोकायिक होती है, जैसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। तो मन और शरीर दोनों का संबंध होते हुए भी हम कोरोना को कैसे दूर सकते? एक बात बता देता हूँ। पतंजलि मुनि जो है उन्होंने योग के अंदर आने वाले कुछ
या ये बताइए है कि जिससे योग जो है वो हमारा बंद हो जाता है, अड़थड़े कहा गया है उसे, मतलब रुकावटें। वो 9 रुकावटें उन्होंने 9 चीज़ों की वजह से योग में हमारी रुकावटें आती है। व्याधि, स्त्यान यानी प्रायोरिटी नहीं रहना, आलस्य, प्रमाद, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व वगैरह ऐसी 9 ये बताए हैं कि ये जो है अड़ंगे है कि जिससे हमारा योग जो है वो रुक जाता है। पहला अड़ंगा उन्होंने बताया है वो है व्याधि, और उन्होंने ये बताया है कि ये 9 के 9 अड़ंगे जो है ये हमारे चित्त के विक्षेप है। यानी उनका कहना ये है कि व्याधि जो है ये व्याधि भी चित्त का विक्षेप है। आपको ये सुन के थोड़ा सा गलत लगेगा कि ये क्या बता रहा है ये आदमी कि व्याधि ये चित्त का विक्षेप कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी भी मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। धीरे धीरे हमारे भी ध्यान में आ जाएगा कि व्याधि भी चित्त का विक्षेप ही है। 50 साल पहले एलोपैथी या आधुनिक शास्त्र जो है वो ये मानता ही नहीं था कि मन नाम की कोई चीज़ है। अभी साइकोसोमेटिक ये व्याधियाँ रहती है इसके ऊपर ये शास्त्र आ गया है, लेकिन पतंजलि मुनि ने ये तब बता के रखा था कि व्याधियाँ जो है ये साइकोसोमेटिक है, और उनका ये कहना है कि सारी व्याधियाँ ये साइकोसोमेटिक है। अगर अपघात से कुछ हो गया है तो अलग बात है, लेकिन व्याधियाँ जो हो रही है ये उनका कहना है कि ये साइकोसोमेटिक है, ये चित्त का विक्षेप है। उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो गया था, शायद आप लोगों में से किसी ने उसे देखा होगा। हिमालय में हमारे किसी आर्मी के ऑफिसर ने या आदमियों ने एक साधु को बर्फ में चलता हुआ रिकॉर्ड किया था। आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है। सिर्फ उसने एक लंगोटी पहनी थी और बाकी बदन पर उसके कोई कपड़े नहीं थे, और वो बर्फ में चलता हुआ वहाँ से आया और उनके सामने से वो चला गया। उन्होंने उसको वीडियो शूट किया और वो वीडियो जो है वो वायरल हो गया था। जहाँ पर हम लोग बर्फ में जाते हैं तो हम लोग हैंड ग्लोव्स, पैर में ये सब जूते वगैरह पहनते हैं क्योंकि आइस बर्न ना हो जाए, वहाँ पर हिमदंश जिसे कहते हैं वो ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये सारी तैयारियाँ करके वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर वो साधु जो है वो सिर्फ लंगोटी लगाया हुआ बर्फ में घूम रहा था। आगे चल के ऐसा भी देखा कि वो जो है वो ऐसे रोल होते हुए भी बर्फ के ऊपर से आगे चला गया, उसके साथ एक कुत्ता भी था। हो सकता है कि ये वीडियो जो है ये सही नहीं होगा, किसी ने ऐसे ही बनाया होगा, किसी को मतलब ये मॉर्फ किया होगा। हाँ, मॉर्फ किया होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, महाराष्ट्र में एक संत थे गजानन महाराज करके, उनकी उसमें चरित्र में ऐसे लिखा है कि वो जब शेगांव में आ गए तो वो गटर का पानी पी रहे थे, और लोगों ने फेंका हुआ जो भी झूठा अन्न जो रहता है या दूषित जो ये रहता है वो खा रहे थे, और उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो ये दो चीज़ें ऐसे एक ध्यान में आता है कि मन की एक अगर उच्च अवस्था हमारी है तो व्याधियां हम लोगों के ऊपर असर नहीं कर सकती। अगर उच्च अवस्था है कि वो योगी है, चलो बर्फ में चल रहा था वो योगी है, गजानन महाराज भी एक योगी थे, तो उनको उनकी एक मन की ऐसी उच्च अवस्था में थे कि उनको किसी भी प्रकार की व्याधियां नहीं होती थी, चाहे वो कुछ भी कर ले। एक बहुत नीची वाली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आपको ये ध्यान में आएगा कि मन की एकदम नीची वाली अवस्था में भी व्याधियां काम नहीं करती है। हमारे घर के सामने एक पागल औरत, उत्तर प्रदेश की एक औरत थी, पागल औरत, 8 साल तक मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। वो हमारे यहाँ पे रोड पर बैठती थी। जब बारिश होती थी तो उसके शरीर के ऊपर पानी गिरता था, वरना वो कभी नहीं नहाती थी। उसके कपड़े जो थे उसमें वो पत्थर वगैरह वो सब लेकर के ऐसे जमा करके उसके अंदर बैठ जाती थी। हम लोग भी, हमारे घर में कुछ खाना बचता था तो वो हम लोग उसे देते थे, ऐसे उसका गुजारा चलता था। 8-9 साल तक मैंने उस औरत को कभी ना छींकते हुए देखा, ना कभी उसको बुखार आया हुआ देखा, आया भी होगा तो भी पता नहीं, लेकिन 8-9 साल तक वो औरत वहाँ पर थी। आप लोग भी रोड पर पागल लोगों को घूमते हुए देखते होंगे, उनके बहुत बड़े बाल बड़े हुए रहते हैं, उनके कपड़े बहुत गंदे रहते हैं। वो तो जल्दी ये कोरोना में और ये सब चीज़ों में वो जो है वो उसके लपेट में आने चाहिए, बहुत जल्दी उनको संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदी इसमें वो रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मन की 2 अवस्था में जो है, बहुत ऊंची अवस्था और मन की बहुत नीची अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं में व्याधियां जो है वो शरीर पर असर नहीं करती है, क्योंकि मन जो है वो उसे अलाउ नहीं करता है।
ठीक है, हम लोग एकदम ऊंची अवस्था में भी नहीं जा सकते हैं, हम लोग साधु वगैरह भी नहीं हो सकते हैं, हम लोग पागल भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग तो ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग ऐसा सोचे कि दुनिया में चाहे किसी को भी कोरोना होगा लेकिन मुझे कोरोना नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम लोग रखेंगे, यही तो हम लोग कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग रखेंगे तो व्याधियाँ होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। वैसे भी अभी आधुनिक शास्त्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानता है, सब लोगों को, आप लोगों को मालूम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आप लोग जैसा सोचते हो धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हो। तो क्यों ना हम लोग ये सोचे कि मुझे कोरोना नहीं होगा या मुझे व्याधियाँ नहीं होगी, चाहे दूसरे किसी को भी हो जाएगा लेकिन मुझे नहीं होगा। अगर हम लोग हमारे मन की शक्ति को ऐसा ये करते रहेंगे, हम लोग हमारे मन को इस तरह का हर रोज ये करते रहेंगे कि मुझे कोरोना नहीं होने वाला, तो हम लोगों को कोरोना नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम लोग गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशंस बताई है वो हम लोगों को लेनी ही चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप बगैर मास्क के घूमो इधर उधर, चाहे कुछ भी करो, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को पालने ही है। लेकिन अगर हम लोग दिन में 4-4 घंटा टीवी की ये बातें देखते रहेंगे कि इतने लोग मर गए, इधर इसको ऐसा हो गया, यहाँ पर वो आदमी जो है वो इस तरह से मर गया, अगर हम लोग ये देखते रहेंगे तो हम लोग हर क्षण हमारे मन को निगेटिव थिंकिंग की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। तो पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी बातें देखना और पढ़ना जो है वो हम लोग बंद करें। अखबार जो ये बता रहे हैं कि इटली में इतने लोग मर गए, वहाँ पर इतने लोग, ये सारी बातों से हम लोगों को नुकसान ही होने वाला है। हम लोग हमारी खबरदारी ज़रूर लें, लेकिन ये सब बातें जो है इसे ना देखें ना सुने, और रोज़ हमारे मन को ये बताए कि मुझे कोरोना नहीं होगा, चाहे दूसरे किसी को भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग ये सब बातों से अपने आप को बचाने में और ये कर सकते हैं, दूर रखने में मदद कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। और हम अपनी पॉजिटिविटी अब हमारे कुटुंब और या तो फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देसाई जी, अभी हम लॉकडाउन में हैं अभी भी, और घर में पड़े हैं, अच्छा खासा खाते हैं, सिटी जी ने बताया, तो काफ़ी लोगों को इंडाइजेशन की समस्याएं आती है। तो आज हमें ऐसी कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन बताइए कि जो ऑनलाइन आपने दिखाने से भी अगर हम देख के करें तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा और हमें कुछ टिप्स मिल जाए। ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बाकी की जो इंडाइजेशन के लिए क्रियाएं, जो पेट की क्रियाएं वगैरह जो है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियाँ भी हम लोगों को बरतनी चाहिए कि उसमें 4 घंटे का पेट खाली होना चाहिए, हम लोगों को पेट की कुछ बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए, गर्भाशय से संबंधित कुछ व्याधियाँ नहीं होनी चाहिए, मेंसेस से संबंधित हम लोगों को कुछ तकलीफें नहीं होनी चाहिए, तो ही हम लोग ये क्रियाएं जो है, पेट की क्रियाएं जो है वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत आसान बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर वो हम लोग करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमारे जो ज़्यादा लोड आ रहा है वो हम लोग कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं। एक सारी बात है वज्रासन जिसे कहते हैं, ये वज्रासन में अगर हम लोग बैठ जाए, वज्रासन में हम लोग बैठ जाए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पीछे हमारे पैरों की उंगलियां जो है वो छोड़ दे, दोनों एड़ियां बाजू में करे और उसके बीच में बैठ जाए। पीछे की तरफ से हम लोगों ने देख लिया। अभी आगे जो है ये दोनों घुटने हम लोग एक दूसरे को सटा के रखें, दोनों हाथ हमारी बड़ी पिंडलियों पर रख दे या बाएं हाथ में दाहिना हाथ, ऐसे हाथों को गोद में रख दे। ये हो गया वज्रासन। अब ये वज्रासन में भी अगर हम लोग बैठेंगे, नहीं दिख रहा है आपका ये हाँ अभी दिख रहा है, अभी सही हो रहा है। हाँ ग्रेट, ठीक है। तो ये अगर वज्रासन में हम लोग बैठेंगे तो भी हम लोगों को इसका कुछ मात्रा में फायदा हो सकता है। भी कैसे फायदा होता है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर वज्रासन में हम लोग बैठ गए, 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, तो थोड़ी देर के बाद में हमारे पैर जो है वो नम हो जाते हैं, उसमें चींटियाँ आ जाती है, ज़्यादा देर हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। पैर नम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाले हिस्से में खून का सर्कुलेशन जो है वो कम हो गया। नीचे वाले हिस्से में हमारे सिर्फ 2 पैर है,
उनका काम है उठना, बैठना, दौड़ना। अभी हम लोगों को उसका कुछ काम नहीं है। तो अगर हम लोग वज्रासन में बैठेंगे तो नीचे वाले हिस्से में खून का सर्कुलेशन कम हो जाएगा और ऊपर वाले हिस्से में नेचुरली खून का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। 3 से 5 मिनट में पूरा खून हमारा शरीर में सर्कुलेट होते रहता है। अगर हम लोग दौड़ रहे, खेल रहे, कूद रहे तो 3 मिनट में, शांति से बैठे हैं तो 5 मिनट में हमारा पूरा खून जो है वो शरीर में सर्कुलेट होते रहता है। अगर हम लोग वज्रासन में बैठेंगे, नीचे वाले हिस्से में खून का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, नेचुरली ऊपर वाले हिस्से में खून का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। अभी सारे महत्व के अवयव जो है ये हमारे ऊपर वाले हिस्से में है, नीचे सिर्फ 2 पैर है। पैरों में से खून का सर्कुलेशन हम लोगों ने कम कर लिया, तो ऊपर वाले सारे जो हमारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जो है, अवयव, इंद्रिय जो है, उनको अच्छे खून का सप्लाई जल्दी मिलना चालू हो जाएगा। भोजन हजम करने के लिए हाथों की हलचल होती रहती है। हम लोग जब खाना खाते हैं, बहुत सी बार खाना खाने के बाद हम लोगों को नींद आ जाती है। दोपहर का खाना खा लिया, रात को खाना खा लिया तो हम लोगों को नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि सारा खून जो है, ज़्यादा मात्रा में खून जो है ये आंतों की तरफ चला जाता है। आंतों की तरफ अगर खून चला गया तो मस्तिष्क की तरफ जाने वाला खून जो है वो थोड़ी मात्रा में कम हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को नींद आ जाती है। अभी आंतों की तरफ अगर ज़्यादा मात्रा में खून गया है, क्योंकि वहाँ पर आंतों की हलचल हो रही है, भोजन को हम लोग वहाँ पर हजम कर रहे हैं। अगर हम लोग वज्रासन में बैठेंगे तो नेचुरली नीचे वाले हिस्से में खून का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आंतों की तरफ खून का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा और भोजन हजम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये एकदम आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिर्फ बैठे बैठे हम लोग हमारे शरीर की पचन शक्ति जो है उसे थोड़ा सा हम लोग चालना दे सकते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये हम लोग वज्रासन करने के लिए कोई अलग से समय निकालें। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, ये कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। घर में अगर बैठे हैं तो वज्रासन में बैठे बैठे योग का फायदा मिल जाएगा। इसका और एक फायदा आप लोगों को मिलता है कि ये छोटी पिंडलियां जो है हमारी, काफ का भाग जो रहता है, छोटी पिंडलियां जो है, ये छोटी पिंडलियों में बहुत सारा अशुद्ध खून संचित रहता है। ये खून ऊपर लाने के लिए हमारे हृदय को ज़्यादा मात्रा में काम करना पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध ये खून को हम लोगों को ऊपर लाना है। ये संचित खून जो है, छोटी पिंडलियों में संचित खून जो है, अगर हम लोग ये वज्रासन में बैठ जाते हैं तो बराबर हमारी ये छोटी पिंडलियां जो है, ये छोटी पिंडलियां दब जाती है और ये अशुद्ध खून जो है, ये अशुद्ध खून जल्दी तेजी से ऊपर की तरफ आने के लिए उसको सहायता मिलती है। तो खून के शुद्धिकरण का वेग भी हम लोग ये वज्रासन में बैठ के बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बैठे बैठे योग का फायदा आप लोगों को मिल सकता है। बात करने के लिए आपको बैठना है, टीवी देखने के लिए बैठना है, पढ़ाई करने के लिए बैठना है, आड़े टेढ़े बैठने की बजाय अगर हम लोग वज्रासन में बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी आदत अगर हम लोग शरीर को लगाते जाएंगे तो बैठे बैठे योग का फायदा आप लोगों को मिल सकता है। इसका और एक फायदा मिलता है कि अगर हम लोग इस तरह से बैठेंगे तो हम लोग हमारे हृदय को कुछ मात्रा में विश्रांति दे सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध हम लोगों को खून को ऊपर की तरफ लाने के लिए हार्ट को ज़्यादा मात्रा में पंपिंग करना पड़ता है। वज्रासन में अगर हम लोग बैठेंगे तो आसानी से खून ऊपर की तरफ आना चालू हो जाता है और उसका फायदा भी हम लोगों को, हृदय को विश्रांति देने के लिए भी इसका ये वज्रासन का फायदा हम लोगों को मिल सकता है। तो बैठे बैठे पचन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये एक आसन जो है ये अब हम लोगों को काम में आ सकता है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर व्याधियाँ जो है, शहर में रहने वाले लोगों को व्याधियाँ जो होती है ये ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से होती है। हम लोग जो बीमार पड़ रहे हैं ना, ये बीमारी की वजह ही है कि हम लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो खाना हम लोग थोड़ा कम करें। अभी कितना कम करें इसके लिए भी एक छोटा सा नुस्खा आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। सुबह उठने के बाद में हम लोग ब्रश करते हैं, आईने के सामने खड़े होकर ब्रश करते हैं, हमारा चेहरा वेहरा जो है वो हम लोग ठाक ठीक करते हैं। उस वक्त हम लोग अपनी जुबान को बाहर निकाल कर देख ले कि हमारी जुबान लाल है या सफ़ेद है। जुबान को बाहर निकाले और देख ले। अगर जुबान आपकी लाल है तो आप बराबर मात्रा में खाना खा रहे हैं। अगर आपकी जुबान सफ़ेद है तो ये ध्यान में ले लीजिए कि आप ज़्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं। अभी टंग क्लीनर रहता है, वो टंग क्लीनर लेके उसे जुबान को साफ करें। आधे घंटे के बाद में वापस वैसी आपकी जुबान जो है वो सफ़ेद हो जाएगी।
इसे कहते हैं आम। हमारे शरीर में आंतों में ये आम रहता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं ये 4 घंटे के अंदर, 4.5 घंटे के अंदर हजम होना जरूरी होता है। छोटी छोटी चीजें रहती है वो 2-2.5 घंटे में हजम हो जाती है। तूर दाल है, मच्छी है या चिकन है, ये हजम करने के लिए 4.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। मतलब हम लोगों ने जो खाना खाया है ये 4.5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में शरीर ने उसे हजम करना चाहिए। सुबह उठने के बाद अगर आपकी जुबान सफ़ेद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपका खाना अभी तक पूरी तरह से हजम नहीं हुआ है। इसके बाद अगर कभी आप जलधौती करेंगे तो उसमें से चावल बीवल बाहर आ जाते हैं। रात को 8-9 बजे खाया हुआ खाना अगर सुबह जलधौती करने के बाद उसमें से चावल बाहर निकल आ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात हम लोग ध्यान में रखें कि इनटेक जो है, शरीर के अंदर जो हम लोग चीज़ें डाल रहे हैं उसके ऊपर ही पहले हम लोग थोड़ा सा निर्बंध डालें। तो कैसे निर्बंध डालना है मैंने आप लोगों को बता दिया। सुबह उठ के चेहरा देखने से पहले जुबान को देखें। अगर जुबान लाल है तो हम लोगों ने जो खाना खाया है वो बराबर। जुबान अगर सफ़ेद है तो आप लोगों को रात के खाने की क्वांटिटी जो है उसको कम करना चाहिए। शरीर अपने आप काम करते रहता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। शरीर को सिर्फ थोड़ी सी सहायता दे दीजिए, थोड़ा सा उसको सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। पेट के हिस्से जो है पूरा पेट भर के अगर हम लोगों ने खाना खा लिया, डकार आ रहे फिर भी हम लोग खाना खा रहे हैं, अगर ऐसे करते जाएंगे तो सांस लेने में भी हम लोगों को तकलीफ हो जाएगी। वो शरीर जो है वो हम लोगों को बोलेगा ये इंसान है या कौन है। तो थोड़ा सा अगर शरीर को हम लोग सहायता दे देंगे, थोड़ा कम खाना खाएंगे तो व्याधियाँ हम लोगों को होगी ही नहीं। अगर हो भी गई है तो उसके लिए योग की क्रियाएं हैं, उससे हम लोग शरीर को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बहुत बहुत बड़ा और बहुत आसान सा नुस्खा आपने बताया है। ये कोरोना के लिए हम लोग थ्रोट जो है, हमारा गला है, ज्याला आपण मराठीमध्ये घसा म्हणतो, त्या घशाला आणि आपली मान जी आहे हे खूप महत्त्वाचे अवयव आहेत. तर त्या संबंधात कोणती क्रिया तुम्ही आम्हाला सांगाल का? समझो। हाँ। बताता हूँ। गले के लिए हम लोगों को जो क्रियाएं करनी है वो थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर देख ले। इसे कहते हैं ब्रह्म मुद्रा। गर्दन के 3 प्रकार है। इसमें पहले प्रकार में गर्दन को थोड़ा सा सख्त कर ले, जरा सा पीछे दबा के ले ले और दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ पीछे मुड़कर देखे। जरा यहाँ पर देख लीजिए। जरा ताकत लगाकर ये गर्दन की क्रिया को करें। 7-8 बार इस तरह से गर्दन को दाएं बाजू में, बाएं बाजू में घुमा ले। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार में हम लोग गर्दन को थोड़ा सा गोल घुमाएं। पहले गर्दन ढीली छोड़ दे, फिर बाएं कंधे पर पीछे, दाहिने कंधे पर आगे नीचे, इस तरह से पूरी तरह गर्दन को चक्राकार घुमा ले। आंखें बंद रखते हुए ये क्रिया करें। पहले प्रकार में आंखें हम लोगों ने खुली रखी थी, अभी दूसरे प्रकार में हम लोग आंखें बंद करके ये क्रिया को करें। बाकी शरीर की हलचल नहीं करें, कंधों को ऊपर ना उठाए, सिर्फ गर्दन को गोल घुमाना है। एक तरफ से 7-8 बार करने के बाद दूसरी तरफ से 7-8 बार गर्दन को इसी तरह से गोल घुमा लें। बस। तीसरा प्रकार एक गर्दन का है जिसमें गर्दन को हम लोगों को झटके लगाने हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। देख लीजिए जरा, आंखें बंद रखते हुए ये क्रिया को कर लें। बस, रुक जाए। इससे क्या होता है ये कहने से पहले एक थोड़ी सी और छोटी बात आप लोगों को बता देता हूं कि अगर गर्दन की शिकायत है, स्पॉन्डिलाइटिस की जैसी शिकायत है, गर्दन में दर्द है, तो ये तीसरा वाला प्रकार जो है झटका लगाने वाला, वो प्रकार ना करे। और दूसरा प्रकार जो है, ये दूसरे प्रकार में गर्दन को नीचे नहीं लाए, बाएं कंधे पे लेके जाए, पीछे लेके जाए, दाहिने कंधे पर और आगे ऊपर ही ऊपर से गर्दन को घुमा ले। अभी एक तरफ से ऐसे 6-7 बार कर ले और फिर दूसरी तरफ से 6-7 बार कर ले, लेकिन गर्दन को नीचे नहीं लाए। तो जिन लोगों को ये गर्दन की तकलीफ है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो लोग थोड़ा सा इसको जरा ध्यान रखें कि ये वो लोग इस तरह से क्रिया करेंगे।
पहला प्रकार जो है वो हर कोई कर सकता है। अभी ये गर्दन के प्रकार करने से अंदर क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि पहली बात तो है कि यहाँ पर ग्रंथियाँ रहती है जिसे कहते हैं थायराइड की ग्रंथि। अभी आजकल शहर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को ये थायराइड की बीमारियां हो रही है। थायराइड की बीमारी जो है, यहाँ की जो ग्रंथियां रहती है, ये ग्रंथियों में से कुछ स्राव जो है उनका सिक्रीशन होते रहता है। कुछ बूंदे भी अगर उसमें से कम या ज़्यादा हो जाए तो हम लोगों को ये थायराइड की शिकायत होती है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो जाता है। अगर हम लोग ये गर्दन के प्रकार करेंगे तो ये थायराइड की ग्रंथि जो है उसे दबाया जाता है, खींचा जाता है, उसको एक प्रकार का व्यायाम दिया जाता है और उसमें से जो सिक्रीशन हो रहा है उसके ऊपर नियमन लाया जाता है। तो थायराइड की अगर तकलीफ है तो उसके लिए ये गर्दन की क्रिया जो है, ब्रह्म मुद्रा जिसे हम लोग कहते हैं, वो काफ़ी फायदा देती है। और एक फायदा हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पर और दो ग्रंथियाँ हैं जिसे कहते हैं लिम्फ ग्लैंड्स। मैंने बता दिया कि हमारे शरीर को 9 दरवाजे हैं, ऊपर वाले 7 दरवाजे और नीचे वाले 2 दरवाजे। ये 9 दरवाजों के ऊपर भगवान ने सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा कर रखे हैं। यहाँ पर 2 ग्रंथियाँ हैं, वैसी ही 2 ग्रंथियाँ हमारे दोनों जंघाओं में रहती है, वैसी ही 2 ग्रंथियाँ हमारे दोनों बगल में रहती है। उन्हें कहा जाता है लिम्फ ग्लैंड्स। ये लिम्फ ग्लैंड्स का काम होता है, बाहर से अगर जंतुओं ने अगर बाहर से शरीर में प्रवेश किया है तो उन्हें रोकने का काम ये ग्रंथियाँ करती है। जैसा मैंने बता दिया कि ऊपर वाले 7 दरवाजों में से ये जीव जंतु जो है वो शरीर में प्रवेश करते हैं। 7 दरवाजों में से अगर ये जंतुओं ने अगर शरीर में प्रवेश कर लिया तो उन्हें पहले रोकने का काम ये लिम्फ ग्लैंड्स करती रहती है। इसलिए अगर हम लोगों को कुछ बीमारी होने वाली है, बुखार आने वाला है या सर्दी होने वाली है या जरा सा कुछ होने वाला है, तो पहले हमारा गला खराब हो जाता है, गले में इचिंग चालू हो जाता है, तो ये ग्रंथियाँ उस वक्त एक्टिवेट हो जाती है। अगर हम लोग ये गर्दन के प्रकार करते जाएंगे तो ये लिम्फ ग्लैंड जो है उनको भी खींचा जाता है, दबाया जाता है, उनको व्यायाम दिया जाता है, उनकी कार्य क्षमता जो है उसे बढ़ाया जाता है। सिर्फ गर्दन के प्रकार करने से हम लोग हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कितनी आसान बात है। देखिए, ये लिम्फ ग्लैंड जो है उसको अगर हम लोग व्यायाम दे देंगे तो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। अभी ये सब बातें जो है, ये ब्रह्म मुद्रा जो मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत बाकी के धर्मों में भी अलग तरह से इन सब बातों को बताया था। आप लोग देखते होंगे कि चर्च में जाने के बाद वहाँ पर जो जाते हैं वो लोग गर्दन को इस तरह से करते हैं। दिन में अगर 10-12 बार आप लोगों ने ऐसे कर लिया तो वहाँ की ग्रंथियाँ जो है उनको दबाया जाएगा, खींचा जाएगा, उनके स्रावों के ऊपर नियमन लाया जाएगा। मुस्लिम धर्म में नमाज होने के बाद में एक ये किया जाता है जिसे कहते हैं नमाज कबूल करना। उसमें वज्रासन के जैसे ही बैठकर हाथ जो है वो ऐसे पकड़कर उर्दू के कलमे बोलते हुए गर्दन को ऐसे दोनों तरफ हिलाया जाता है। कभी आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, उसे कहते हैं नमाज कबूल करना। सिर्फ गर्दन के प्रकार करने से भी ये ग्रंथियाँ जो है, ये ग्रंथियों को ताकत बढ़ाई जाती है। इतनी सारी आसान बातें सारे धर्मों में अलग अलग तरह से ये सब बताया गया था। योग जो है उसमें जरा ये और जरा ढंग से बताया है, ऐसा ही है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये वज्रासन में बैठकर अगर हम लोग ये गर्दन के प्रकार करेंगे तो भी हम लोग हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसे कुछ मात्रा में बढ़ा सकते हैं। अभी ये करने के लिए हम लोगों को अलग से समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी दिन में बैठे बैठे हम लोग ये कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के करें, अगर हम लोगों को समय नहीं है तो वज्रासन नहीं होता है, कुर्सी पे बैठ के करें। लेकिन हो सकता है कि ये अगर वज्रासन में करेंगे तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दिन में अगर 3-4 बार भी अगर हम लोग ये गर्दन के ऐसे 7-8 बार प्रकार करते जाएंगे तो भी हम लोग ये लिम्फ ग्लैंड्स की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। थायराइड की ग्रंथि जो है उसकी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। और थायराइड की अगर विकार है, ये जब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा था तो मुझे बताया गया था कि बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। मुझे बड़ा आनंद लगा कि ये स्टूडेंट्स जो है वो क्यूरियस तो है, कम से कम क्या चल रहा है ये सीखना तो चाहते हैं। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि थायराइड की बीमारी के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सादा नमक खाना शुरू कर दीजिए। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक सादी बात आप लोगों को बता देता हूँ। आयोडाइज नमक अगर आप लोग खाओगे तो शरीर पर उसके दुष्परिणाम होने वाले हैं। एक सीधी सी बात बताता हूँ, आप ही के ध्यान में आ जाएगा। सादा नमक जो है, ये सादा नमक अगर आप लोग बाहर रखोगे तो क्या होता है,
वो गीला हो जाता है, बाहर का मॉइस्चर जो है वो खींच लेता है, मतलब वो नमक के ऊपर वातावरण का असर होता है, सादा नमक जो है उसके ऊपर असर होता है। आप आयोडाइज नमक जो है वो बाहर रखो, साल भर बाहर रखो, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। वातावरण का जिस चीज के ऊपर असर होता है वो चीज हमारे शरीर में जल्दी हजम होगी, या वातावरण का जिस चीज के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है वो चीज हमारे शरीर में जल्दी हजम होगी। थोड़ा सोचिए। इसके लिए अगर आप केला छीलते हैं, सेब काटते हैं, वो काला हो जाता है क्योंकि हवा का असर उसके ऊपर होता है। हवा का, वातावरण का असर उसके ऊपर हो गया तो जल्दी होता है। इसके लिए ये फल जो है ये हमारे शरीर में जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। ये आयोडाइज नमक जो है, अगर हम लोग जिस चीज के साथ में उसे मिलाएंगे वो सारी चीजें हजम करने के लिए कठिन हो जाती है। जो 4 घंटे में हजम होना चाहिए वो हजम करने के लिए शरीर को 6-7 घंटे लगते रहते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि सादा नमक खाना शुरू कर दीजिए, आयोडाइज नमक खाना जो है वो बंद कर दीजिए। दूसरी बात है, प्रिजर्वेटिव फूड्स खाना बंद कर दीजिए। सूप आते हैं, रेडीमेड सूप आते हैं, पानी डालो, उबालो और पी जाओ। फलों के रस आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए रहते हैं। वो टिन फूड रहता है जिसमें प्रिजर्वेटिव फूड मिलाया है, वो सारी चीजें खाना बंद कर दीजिए। प्रिजर्वेशन का मतलब ही ध्यान में रखें कि कोई भी चीज में प्रिजर्वेटिव क्यों मिलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें विषाणु ना तैयार हो, उसमें बैक्टीरिया तैयार नहीं होने चाहिए, इसके लिए ये सब मिलाया जाता है। भोजन हजम करना ये भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। बैक्टीरिया और आम्ल जब काम करेगा तब भोजन हजम होता है। अब जिस चीज में बैक्टीरिया तैयार ही नहीं होंगे, ऐसे अगर प्रिजर्वेटिव मिलाई हुई चीजें आप लोग खाओगे तो वो भोजन हजम करने के लिए शरीर को क्या क्या करना पड़ता होगा, थोड़ा सोचिए। तो ये पहली बात ध्यान में रखिए कि प्रिजर्वेटिव डाली हुई चीजें जो है वो खाना बंद कर दीजिए। ये आयोडाइज मीट खाना जो है वो बंद कर दीजिए, सादा नमक खाना चालू कर दीजिए। और ये शरीर की कुछ क्रियाएं हैं वो सब, अगर आप थायराइड के लिए अभी जैसा मैंने बता दिया, गर्दन के प्रकार है, ओमकार का उच्चारण है, वो अगर आप लोग करते जाओगे तो उसका और फायदा आप लोगों को मिल सकता है। धन्यवाद विनायक जी। आपने काफ़ी मात्रा में हमारे काफ़ी सारी गलतफहमियाँ और काफ़ी सारी हमारे मन में जो डाउट्स थे उसके बारे में आपने चर्चा की और उसके प्रश्न के उत्तर भी देने चाहे। अभी जो प्रश्न मैंने आपको किए थे उसके काफ़ी मात्रा में आपने उत्तर दिए हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो दर्शक हैं सुनने वाले, उन्होंने चैट बॉक्स में भी काफ़ी प्रश्न दिए हैं। वो प्रश्न की ओर मुड़ने से पहले मैं दर्शकों को और मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि श्री अंबिका योगाश्रम के ये जो हमारे सामने योग शिक्षक, योग मार्गदर्शक विनायक जी देसाई है, उन्होंने इस योगा के मार्गदर्शन में सहायता होने के लिए पुस्तक भी लिखे हैं जिसका नाम है योग रश्मि। और ये पुस्तक जो है, आप कृपा करके वो पुस्तक का मुख पृष्ठ जो है वो अगर दर्शकों को दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, जिसका नाम है योग रश्मि। और वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, योग रश्मि। आप थाना स्थित श्रीरंग सोसाइटी में जो योगाश्रम है वहाँ जाकर ये पुस्तक ले सकते हैं। वेबसाइट है, अंबिका योगाश्रम की एक वेबसाइट है जो आपको चैट बॉक्स में मिलेगी। वेबसाइट में जाके आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं और अगर आप प्रत्यक्ष रूप में उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाल ही में अंबिका योगाश्रम ने एक YouTube चैनल लॉन्च किया है और वो YouTube चैनल की लिंक जो है वो भी आपको चैट बॉक्स में मिलेगी, जिसमें काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिखाए गए हैं, योगा की क्रिया सिखाई गई है, तो आप उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। उसमें सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए वो भी बताई गई है। और आगे चल के जैसे हम लॉकडाउन के हिसाब से तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसके वास्ते हमें अगर ये YouTube चैनल को आप देखेंगे तो आपको उस योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद विनायक जी, हमने पूरा एक घंटा आपके हमारे साथ बात की और काफ़ी जो
योगा संदर्भ में जो चीज़ें थी उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की। मैं आपका तहे दिल से आभार प्रदर्शन करती हूँ। और अभी हम इस प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है जिसमें हम प्रश्नोत्तर लेने वाले हैं। But my dear students, for last 2 hours we have tried to unfold the noble path of yoga and meditation. The purpose of this webinar was to create an awareness that we can develop some defense mechanisms and incorporate few strategies to deal with global pandemic. For this, one has to learn to look inward and to know oneself, because our body gives us signals before any disorder or any disease developing in the body. The only need is to know your body, to read the signals and take timely action. Dear students, we all know Darwin's principle of survival of the fittest. But in this new world, we can say now it's not survival, not only of the fittest, but also of the smartest. And being smart is making yoga and meditation a way of life. So let us end this discussion on a very positive note that there is a way out, which is yoga and vipassana. And the bottom line, one more is, which is free of cost. You can learn and be happy, healthy, and prosper in your life. With this, although we end this panel discussion, we don't conclude, because as I have told you that there are few questions in a chat box, and I would like to go one by one. The first question is for Dr. Beatrice. Yeah. Yeah, madam. The question is, negative stress can be removed by pronouncing God's name also. So by I didn't. chanting. Yeah. Yeah, I repeat the question. By chanting God's name or by penance. So can you remove negative stress? You will remove it on the surface level actually, but that will not last long. The way really to remove the things from the root level will be more actually connected with Vipassana technique. Because that way you will accept the things and it will go away by itself. It will change. As we said previously, it is transitory nature, and so that will go away slowly. When you chant something on, or when you do something else, instead of focusing on what is happening inside your body, when there is stress or any negative emotion, actually you are just deviating your attention. That's it. Okay. So it doesn't remove the stress at the root level. Thank you, madam. Next question is for विनायक जी. उन्होंने पूछा है कि डेली योगा करने के लिए कौन सा समय उचित है, कौन से समय ये योगिक प्रैक्टिस होनी चाहिए और कितने बार करने के, कितने समय तक करने के बाद हमको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे? पहली बात तो है कि ये सब करने के लिए 4 घंटे का पेट हमारा खाली है, ऐसे समय पर कभी भी हम लोग योग कर सकते हैं। लेकिन अगर सुबह में हम लोग योग करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि रात भर की थकान हमारी दूर हो जाती है, हमारे अवयव इंद्रिय जो है वो कार्यक्षम रहते हैं। इसके लिए सुबह में योग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सुबह का समय अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो 4 घंटे का पेट खाली है, ऐसे समय पर हम लोग कभी भी योग कर सकते हैं। अभी रिजल्ट मिलने की बात जो है, ये आप क्या कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, कितने एक्यूरेटली कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी किस चीज़ का रिजल्ट, हम लोग किस चीज़ के रिजल्ट के बारे में बात करें, मान लीजिए वजन कम होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो नेचुरली ज़्यादा समय लगेगा।
अगर आपकी बीमारी के बारे में है, अगर मान लीजिए गर्दन की शिकायत है, उसके लिए आप योग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गर्दन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देके काम कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सब बातें जो है ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अपना शास्त्र कहता है व्यक्ति तिथ्य प्रकृति, तो ये बता नहीं सकते हैं कि इतने समय में इसको रिजल्ट मिलेगा। ये व्यक्ति अगर सामने आके पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, इतने समय में मिलेगा। धन्यवाद विनायक जी। अगला प्रश्न भी आपके लिए है जो डायबिटीज के बारे में है। जैसे पैंडेमिक के सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि कोमॉर्बिडिटी जिनको है वो ज़्यादा वल्नरेबल है कोरोना के लिए, तो डायबिटिक के बारे में योग शास्त्र क्या कहता है या क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। योग में कुछ पेट की क्रियाएं हैं, पेट की क्रियाएं जो है वो अगर हम लोग करते जाएंगे, कुछ रीढ़ की हड्डी को एक्सरसाइज देने वाली कुछ बातें हैं वो अगर हम लोग करते जाएंगे, ये हमारा बाजू का हिस्सा जो है, कमर के ऊपर वाला हिस्सा जो है, उसको अगर हम लोग दोनों बाजू में ट्विस्ट करते जाएंगे, पेट की एक्सरसाइज है वो करते जाएंगे तो हमारे पैंक्रियाज जो है उनको चालना मिलती है और वो जो है वो धीरे धीरे एक्टिव होने के लिए शुरुआत हो जाती है। फिर ओमकार के जैसी क्रियाएं हैं। बहुत सी बार ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो है ये स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा मात्रा में होता है, तो स्ट्रेस रिलेटेड अगर डायबिटीज़ है तो ये ओमकार की क्रिया करने से और श्वासों पर नियंत्रण करने से ये उसको कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर है तो या हेरिडिटरी डायबिटीज़ है तो उसे दूर करने के लिए आप लोगों को प्राणायामों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, कुंभकों के प्राणायामों की। Next question is for Dr. Beatrice. The question is about suicidal tendencies and thoughts. How meditation can help? Meditation can be very helpful actually for those issues. It means simply that the mind is very, very much agitated and disturbed. So the thing is, again, acceptance of what is going on, acceptance of the mind is disturbed, and then go through that. It's just a tunnel, it's just a mind chattering box, that's it. So via the technique of meditation, then the mind will focus on a wholesome actually object, which will be the natural breathing, and the person will go through that. And again, that will come, and again, the person will have to go back on the breathing. So the key thing into that is not to put any guilt on those thoughts and feelings. Just accept them as they are. This is the reality of this moment. This has come. Just go through it and come back to the breath, and that's it. And that will come, but a full 10 days course would be better for that. I think it will be more helpful, because it really needs longer and deeper work. True. It is ultimately it is a matter of experience. Students have to go and practice the course. Then there are a few questions which have already been covered by Shri Vinayak ji. और जो थायराइड के बारे में हमने बात की है, उन्होंने उनके यहाँ बोला है जब हमने संवाद किया था। फिर एक आखिरी क्वेश्चन है कि अगर योगा का इतना महत्व है तो ये सिलेबस में कंपलसरी सब्जेक्ट क्यों नहीं है? विनायक जी। हाँ, इसके ऊपर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली ये होना चाहिए। पहले ज़माने में मतलब योग जो है ये सिखाया जाता था। मैं कोर्स की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसका महत्व जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। अभी शालाओं में योग जो है वो कंपलसरी नहीं, लेकिन बहुत सारी शालाओं में उसे कंपलसरी किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में जो इसको जो एक ये बनाया गया, किसी के जरिए ऐसे बनाया गया कि ये किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है,
तो ये एक प्रॉब्लम है। वास्तव में वैसा कुछ नहीं है। योग ये एक जीवन शैली है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना खाना है, ये सारी बातें योग में बताई जाती है और दूसरा कुछ योग नहीं है। तो इसका किसी धर्म के साथ कनेक्शन जो है वो अगर निकाला जाए और ये सब लोगों के लिए है, ये अगर बातें जो है ये सब लोगों तक पहुंचाई जाए तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसे कंपलसरी भी कर सकती है। धन्यवाद विनायक जी। हमारे while registering, many students had specified the questions in the registration form, and I prepared the questionnaire accordingly so that most of the questions got answered. Few questions which appeared in chat box, we tried to take them lively. So now we are coming to the last segment of the program, since the program is getting over at 6 o'clock. But without fail, please give us a feedback. Very honest feedback. How did you find this program? Give your candid opinion for our improvements also. And feedback link is given in the chat box. Please give us feedback. Let us move to the last segment of the program, that is proposing vote of thanks. Now, as a convener, I take your leave and I request the organizing secretary of this webinar, Dr. Minal Mapuskar, to propose vote of thanks. Over to Dr. Minal. Thank you, Jyoti. Good evening, everyone. On behalf of IQSE and Counseling Cell of Kirti College, I, Dr. Minal Mapuskar, Organizing Secretary of this webinar, is here with you to propose vote of thanks after this extremely interesting and informative session. First of all, I express my heartfelt gratitude towards all the panelists, Shri Vinayak Ji Desai, Dr. Beatrice Jeshaw, Ms. Gayatri, Ms. Tanushri, and Mr. Kshitij for accepting our invitation. Gayatri, Kshitij, and Tanushri, you are not only academically excellent, but your commitment to keep yourself healthy, both physically and mentally, will be an inspiration for young minds attending this webinar. Thank you for sharing your experiences with yogic practices during the lockdown. Dr. Beatrice, I express my sincere gratitude to you for joining us from Paris. Your love for yoga and Vipassana and your commitment to popularize it in France is truly extraordinary. I thank Shri Vinayak Ji for sharing his knowledge, expertise, and wisdom in the field of yoga. Your work is a great source of inspiration for many yoga sadhaks across the globe. I'm indebted to Chairman of Deccan Education Society, Dr. Sharadji Kunte, for motivating us to organize today's webinar and also for delivering keynote address. I'm also grateful to Shri Dhananjay Kulkarni, Secretary DES, for his continuous encouragement. I'm grateful to Chairman of College Development Committee of Kirti College, as well as Trustee of DES, Advocate Shri Neel Hedekar, Council members Shri Ajit Palekar and Shri Chandrasekhar Waze for being a strong support in organizing the event. I wish to thank all life members, principals and HMs of schools and colleges of Deccan Education Society. I also express my sincere thanks to our principal, Dr. T.V. Pawar sir, for being immensely supportive all through this journey. I thank Vice Principals, Dr. Seema Purohit, Professor Vitthal Sontakke, Dr. Ravindra Kaude, in charge of self-finance courses, Dr. Seema Sape, IQSE Coordinator, Professor Matthew Samuel, Convener Counseling Cell, Dr. Smita Jadhav, Vice Principal Junior College, Professor Ujwala Mishra, heads and faculty members of various departments for their keen interest and support. I'm thankful to all the viewers, that includes teachers, parents, students, and yoga sadhaks across the world who have joined today in such a large number. I thank the technical team, especially Dr. Seema Purohit and co-convener of the webinar, Dr. Vanita Kamath, members of organizing committee for their active involvement in the organization of the webinar. Lastly, I should not thank, as she is host and part of our college, but a word of appreciation for Jyoti for moderating it so beautifully. Thank you all. I now declare that the program is over. Thank you.